Okay, what assignment is that? What do you want to be when you grow up? Now I want you to think about this very carefully. Answer it honestly. Don't worry about what people are going to think because nobody else is going to see this. आप जब बड़े हो जाओगे तब आप क्या बनोगे, ये आपको लिख के देना है। I do want you to think about why. क्यों ये मत सोचो। Take your time and answer this. आपका खुद का समय ले लो और शांति से बताओ या लिखो। Alright guys, that's all we have time for today. Can I please have your sheets as you're leaving? Thank you. Very nice. Thank you. Well done today. Good job. Have a nice day. Thank you, Boomy. Thank you, John. Bye, Chance. यहाँ पर इसने लिखा है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? हैप्पी। तो उसे हैप्पी बनना है। जब मैं ग्रो अप हो जाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा, तो मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी बनना है। John, can I speak to you for a second? John, I think you've misunderstood the assignment. मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, कि मेरा जो सवाल है वो समझ में नहीं आया। लड़का क्या जवाब देता है? I think you misunderstood life. उसने जवाब दिया, मिस, आप लाइफ को मिसअंडरस्टूड कर रही है, आपको लाइफ समझ में नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। उसने लिखा कि आप बड़ा बन के क्या बनना चाहते हो? बोलते हैं हैप्पी बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि शायद आपको सवाल समझ में नहीं आया। तो लड़का कहता है कि शायद आपको लाइफ समझ में नहीं आया। Money in the hope for success, we end up chasing the wrong things and we make a mess. We end up with less than we started with, end up with more issues than we bargained for. Whilst climbing that ladder and that stairway, we forget why we started climbing in the first place. Once the king of Bhutan was asked by an interviewer what the GDP of Bhutan was. भूटान के पंतप्रधान को पूछा गया कि भूटान का जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो भूटान के पंतप्रधान ने क्या जवाब दिया? He replied by saying, in Bhutan we don't just measure the GDP. हम लोग जीडीपी मेजर नहीं करते, GNH. Instead of just हम लोग GNH मेजर करते हैं। measuring the gross domestic product, we measure gross national happiness. GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हमारे लोग कितने खुश है, ये हम मेजर करते हैं, ना कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं हम लोग देखते हैं। In the process of getting older, we forget the real meaning of life. If you could make a little less and spend more time doing what you love, would that make you happier? Don't trade your happiness for what you think you need. Things can never make us happy because they're temporary and limited, but experiences can last forever. एक्सपीरियंस कैन लास्ट। अनुभव जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसा उसका मानना है। ठीक है। और आज सुबह ही एक सेशन था, उसमें उन्होंने कहा, कबीर का एक दोहा उन्होंने बोला कि करत करत अभ्यास जड़मूति मतलब मूर्ख लोग जो होते हैं वो भी सयाने होते हैं, वो भी वाइज होते हैं। तो एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस जो होता है उससे आदमी hard on बनता things है। they don't love, to spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like.
When we create our identity around what we do, a career, a job, an occupation, we can never be happy because we're basing it on something external. But when we create an identity around who we are and what we want to be and become, then anything is possible. And remember, we become successful by what we get, but we become happy by what we give. Don't get the two confused. वी बिकम हैप्पी व्हाट वी गिव। हम क्या देते हैं उससे हम हैप्पी होते हैं, ना कि हम ना कि हम क्या पा रहे हैं या ले रहे हैं उससे हैप्पी नहीं होते हैं। हमारे इस आज की मीटिंग में 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को कुछ दिया है और लोगों का हैप्पीनेस देखा है। 3 लोग हैं, जो एक है जो है उन्होंने मेडिक्लेम बेचा है, एक ने और 2 लोगों ने शांति बेचा है। शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर 2% हमें मिलता है और वो उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने आज की तारीख में लोगों की गरज क्या है वो देखा है। तो चलिए उन लोगों को सुनते हैं। सबसे पहले जो है दत्ता चौहान, उसके बारे में जिन्होंने पहला शांति हमारे बीच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाया है। तो दत्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप मुझे शांति के बारे में आपको कुछ बताना है कि आपने क्या किया, किस तरीके से शांति आपने बेचा है। सो आप सबसे पहले ज़रा अनम्यूट हो जाएंगे प्लीज़। दत्ता जी, दत्ता, गैलेक्सी J7। हेलो दत्ता। दत्ता का वीडियो शायद पॉज हो गया है। हेलो, ठीक है, चलो हमारे पास और एक शख्स है। दत्ता, दत्ता का वीडियो पॉज हो गया। हाँ दत्ता, बोल। ठीक है, ओके, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हमारे बीच में और एक है शख्स है राजेंद्र, जिन्होंने आज ही बेचा है। तो राजेंद्र प्लीज़ आपका ज़रा वीडियो ऑन करें। ओके, और खुद को अनम्यूट करके राजेंद्र ज़रा प्लीज़ आप बोलेंगे। ओके, हॅलो हाँ बोलिए। हॅलो सर्वांचे धन्यवाद, कारण अभिनंदनाचा वर्षाव केलाय. आणि मी जीवनशांती म्हणजे माझाच मित्र आहे आणि बरेच दिवस म्हणजे टच मध्ये त्याच्या होतो. इतरांकडे पॉलिसी काढलेल्या होत्या त्याच्या, पण मी त्याला एक सरळ मेसेज टाकलाय, जीवनशांती असं असं आहे आणि याच्यामध्ये रिटर्न मिळतील आणि तुझ्या मुलीसाठी सुद्धा आपल्याला काहीतरी करता येईल. तर त्याच्यामध्ये त्याने 2.5 लाखाचं जीवनशांती हे केलंय आणि त्याच्यामध्ये 13,780 रुपये त्याला पेन्शन येणार आहे आणि त्याच्यामध्येच मुलीसाठी त्याने लक्ष आणि त्याला एक प्लॅन देतोय, चाइल्ड मनी बॅक. जवळजवळ 24,000चा प्रीमियम परत येते. तेच पैसे मी त्याला हे करतोय. म्हणजे मी जे लॉकडाऊन मध्ये चालू केलं होतं त्याच्यामध्ये कुठेतरी आता यश यायला सुरुवात झाली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. काही ऑब्जेक्शन आले? नाही, ऑब्जेक्शन म्हणजे काय, एवढं ऑब्जेक्शन नव्हतं, कारण त्याला मी समजवलं की असं असं आहे आणि एवढे पर्सेंटेज मिळतील. तू जर 10 वर्षासाठी, तर त्याला प्रथमतः म्हणजे त्याची मुलगी आहे, मला त्याच्या फॅमिलीचं माहिती होतं. 1-2 मुली आहेत आणि छोट्या मुलीच्या नावावरती काही नाही मला माहिती होतं. मग त्याला पटवून सांगितलं की असं असं आहे. तो म्हणाला चालेल, आपल्याकडे आहेत पैसे, आता ते हे करूया. आणि त्याच्यामधून ते 2.5 लाख रुपये आले आज. याला काही डिफरमेंट पिरियड दिलाय की कसं?
नाही इमिडिएट अॅन्युटी दिली इयरली. अच्छा, इमिजिएट अॅन्युटी दिली आहे. त्याच्यामध्ये इयरली आहे 13,780 रुपये त्याला पेन्शन येणार आहे. ओके. मग व्याजाचा दर आणि वगैरे काय त्याच्या विचारला नाही? नाही व्याजाचं तर त्यांनी काय विचारलं नाही. ओके ओके ओके. नाही तर त्यांनी जनरली सांगितलं तर ऑब्जेक्शन येतं. नाही मी त्यांना ते क्लिअर कट एक प्रेझेंटेशन पाठवलेलं होतं. हम्म, हम्म, हम्म. आणि त्याच्यानंतर त्याला सांगितलं की अरे छोकरीसाठी सुद्धा तुझ्या युक्त्यासाठी सुद्धा तुला काहीतरी करायचंय. मग त्याच्यामध्ये तो म्हणाला काय आहे? तर बोललो असं आहे ते येतील त्याच्यामध्ये अजून थोडे. हा बोलतो चालेल. पहिलं त्याच्यामध्येच ऍडजस्ट केलं होतं पण नंतर मी त्याला प्रेझेंटेशन एक मोठं पाठवलं हम्म. 24,000चा. तो ऍग्री झाला की तो चालेल थोडे पैसे आपण टाकू शकतो त्याच्यात. ते आता सोमवारी येईल आपल्याकडे ते प्रपोजल. ते पण व्हेरी गुड. अजून चालू आहेत आणि मेडिक्लेमचं पण बोलणं चालू आहे. जे आपण लॉकडाऊन मध्ये केलंय ते आता फळाला येतंय. बरोबर आहे. त्यावेळेला आपण त्याचं काय खत पाणी होतं ते काय घातलं, त्याची बीज जी आहेत किंवा त्याची फळं जी आहेत ते आपण. हळूहळू येतात ते. बरोबर. हो हो. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सो राजेंद्र, तुझ्यासाठी जोरदार टाळ्या. आणि सोमवारी आपण राजेंद्र एक खास बक्षीस देणार आहोत. बऱ्याच लोकांना सोमवारी ज्यांनी या महिन्यात काही ना काहीतरी काम केलेलं आहे त्या सगळ्यांना आपण बक्षीस सोमवारी देणार आहोत. ठीक है. सो अभी हम लोग जाएंगे. धन्यवाद सर. थैंक यू राजेंद्र. नाउ वी विल गो टू दत्ता. दत्ता ऐकायला येतंय? दत्ता ऐकायला येतंय का? दत्ता ऐकायला येतंय? ओके ओके. संजीव जी. हाँ सर, बोलिए सर। संजीव जी ने मेडिक्लेम बेचा है तो संजीव जी की भी बात करेंगे. संजीव जी बोलिए. उसने कॉम्प्रहेंसिव और रेड कारपेट, राइट? हाँ हाँ, यस, कॉम्प्रिहेंसिव बेचा और रेड कारपेट, और दोनों एक ही आदमी है, उसकी मम्मी है वो। हाँ. और इसको मैंने 1 महीने पहले फॉलो अप किया था। तो वो एक्चुअली पूना में रहता है ओके. और एक IT फर्म में जॉब करता है वो। हम्म, और अभी वो राजस्थान में शिफ्ट हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में वो राजस्थान में चला गया था वो। हम्म, तो फिर उसको मैंने बोला था कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, काफी अच्छा प्लान है, उसका पूरा डिटेल उसको समझाया है मैंने। हम्म. और जो उसको काफी, और उसमें क्या सबसे मेन, अभी उससे शादी नहीं हुआ है और वो 2 साल के बाद में वो प्लानिंग कर रहा है मैरिज करने का। हम्म. तो मैंने उसको जो बोला कि भाई तू मैरिज करेगा तो उसमें डिलीवरी भी, कॉम्प्रिहेंसिव में डिलीवरी भी तेरा वो खर्चा मिल जाएगा, डिलीवरी का भी Exactly. खर्चा उसमें इंक्लूड है। एग्जैक्टली हाँ, बराबर. तो उसको काफी अच्छा लगा, डिलीवरी का जो उसको बोला तो काफी अच्छा लगा उसको। हम्म, और सेकंड थिंग उसको मैंने बोला इसमें जो क्यूमुलेटिव बोनस है, आपको सेकंड ईयर में ही आपका 50% आपका बोनस एड हो जाएगा। यानी आपका जो पॉलिसी 5 लाख का पॉलिसी ले रहे हो वो डायरेक्ट नेक्स्ट साल में आपका पॉलिसी 10 लाख का पॉलिसी हो जाएगा वो। तो ये काफी उसको अच्छा लगा। बाद में उसको सब मैंने बेनिफिट भी दिखाए। और वो क्या IT का बंदा है, तो मैंने जो उसको बताया उसके बाद में उसने पूरा यूट्यूब पे सर्च किया, ये किया जानने के लिए कि मैं उसको सच बोल रहा हूँ कि बस ऐसे ही थोड़ा ये कर रहा हूँ पॉलिसी लेने के लिए। तो उसने कॉम्प्रिहेंसिव तो लिया मेरे से 5 लाख का, प्लस उसने उसके मम्मी के लिए भी लिया। पहले उसका विचार नहीं था मम्मी के लेने का, तो उसने फिर मम्मी के लिए भी लिया। हाँ, तो इस तरह से 2 पॉलिसी हुआ। और ये जो ऑनलाइन करने का था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं पहले खुद करके देखता हूँ, क्योंकि क्या डायरेक्ट मैं जाऊंगा क्लाइंट के पास ऑनलाइन करने के लिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या अपना इंप्रेशन थोड़ा डाउन होता है बाद में। एग्जैक्टली बराबर तो है. मैंने खुद में पहले एक पर्सनल छोटा सा पॉलिसी लिया, मेरे खुद के लिए पर्सनल एक्सीडेंट लिया। वेरी गुड. और मैंने देखा कैसे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, बराबर होता है कि नहीं होता ऑनलाइन पेमेंट। यस. हाँ. तो वो सब करके देखा मैंने, एकदम परफेक्ट हो गया। वेरी उसके गुड. बाद में मैंने फिर पार्टी को फोन किया और इस तरह से मेरा ये 2 पॉलिसी हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव और रेड कारपेट सर। वेरी गुड वेरी गुड. और उसके लिए सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे श्रद्धा मैडम ने मुझे काफी हेल्प किया। अच्छा. क्योंकि मैं कभी भी प्रॉब्लम आता है तो मैं पहले श्रद्धा मैडम को फोन करता हूँ कि ऐसा है मुझे। अच्छा. तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इसमें ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन ऐसे होता है वैसे होता है। हम्म. तो श्रद्धा मैडम को और आपको मैं सर थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपके दोनों के गाइडेंस के कारण ये 2 पॉलिसी किया सर मैंने। और वो ऑनलाइन जो है स्टार का बहुत बढ़िया है. वो ऑनलाइन उनका पोर्टल जो है वो अच्छा चलता है. बहुत ही सर, बहुत ही अच्छा है, बहुत मैं बोलूँ ना 100%, 10 में से 10 मार्क दे सकते हैं सर, इतना अच्छा पोर्टल है उनका। यस 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 यस. और काफी फास्ट भी चलता है, काफी अच्छा भी है सर। ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच. सर कोरोना सर, हाँ सर एक क्वेश्चन, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, ये सर अभी मेरे ख्याल से अभी तक दोनों ऑनलाइन पे आए नहीं है, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग को चेक किया था। आज ही आए हैं. अच्छा आज आ गए। आ गए. ओके
ठीक है, ओके, मैंने तो भेजा। मैं खुद के लिए से लेने वाला हूँ, मैं सर मैं खुद के लिए लेने वाला हूँ, मेरे वाइफ के लिए, बच्चे के लेने वाला हूँ, मैं कोरोना रक्षक लेने लूंगा मैं। हाँ, तो शायद वो मैंने कल या ग्रुप परसों। ग्रुप पे भेजा है मैंने, अब देख लो। अच्छा ओके, हाँ मैंने देखा, थोड़ी देर पहले देखा था मैं, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में देखा नहीं मैंने वो। ठीक है, ओके। हाँ हाँ सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, यस सर यस। तो हाँ, दत्ता जी, दत्ता ने दोनों भी ऑफ किया है। ठीक है, चलो तब तक। सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, हेलो। हाँ, आवाज स्लो आ रहा है ना? ओके, बहुत स्लो आ रहा है आपका आवाज। हाँ अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है हाँ, सर। तो उसमें स्पीकर डाले थे बड़ा तब से स्लो आ रहा था। इकडे दत्ता, हा हाँ दत्ता, आवाज येतो. कहाँ कुठे आहेस? कुठे तू? दिसतच नाही. तुझा व्हिडिओ जरा ऑन कर. व्हिडिओ आवडा ना. हाँ, व्हिडिओ ऑनच ऑन आहे कर ना. ना. हाँ वीडियो ऑन है कि ऑडियो? व्हिडिओ 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 आणि ऑडिओ दोन्ही पण. ऑन आहे ऑन आहे. हाँ, हॅलो बघू मला दिसत नाही तू. मी दिसतोय. जस्ट अ मिनिट मी गॅलरी व्ह्यूज करतो. कुठे दिसतो? कोण आहे? हाँ, दिसला. ओके, दिसला. तुमचं नेटवर्क इश्यू. हाँ दत्ता, तुझा एक्सपिरियन्स सांगायचा तुला. हा. शांती, हा हा हा. बोल. आता काय जीवनशांती 28 तारीख दिली आपल्याला. हॅलो आवाज येतो. हाँ, आवाज येते. तू बोल. आपल्याला 28 तारीखचं दिलेलं आहे. ते आपल्या मीटिंग मध्ये कंटिन्यू सांगत आले की 28 तारखेला जीवन शांती हे होते, क्लोज होत आहे आणि नवीन येते. तर आपल्या जेवढे आता डेली फोन करतो आपण कस्टमरला ना, तर सगळ्या कस्टमरला मध्ये कोण असे आहेत की ते सिंगल प्लॅन भरू शकतात. त्याच्यामध्ये एक कस्टमर आपलं असं होतं की त्याची मॅच्युरिटी होती 1/15ची आणि त्याला सांगितलं की बाबा असं आहे, काहीतरी इन्व्हेस्ट करूया. तर समोरून पार्टीला जर फोन केला आपण तर पार्टी स्वतःहून पॉझिटिव्ह असते कधी पण. तर आपण स्वतःहून फोन नाही केला तर पार्टी आपल्या हातात येणार नाही. त्या ह्याच्याने पार्टी ती अशी स्पष्ट बोलले की काय करूया. म्हटलं असं आहे, तुम्ही 65 एज आहे तुमचा, तर आजच्या डेटला हा जो जीवन शांती आहे की तुम्हाला पेन्शन डिफॉर्मिटी मध्ये बोला या ऑन द स्पॉट बोला, पेन्शन चालू होईल. तर त्यांनी मला दिलं, बोलवलं, 1 to 1 केलं. आणि पार्टी अशी आहे की करोनामध्ये घरी बोलवते, करोना असला तरी पण पार्टी बोलवते, स्वतः सगळे डॉक्युमेंट्स देते. आणि हे सगळं 20 ऑगस्टची डेट आहे मॅच्युरिटीची. तर त्याच्या अगोदर जरा. हॅलो हाँ, बोल. हॅलो बोल. हा, त्याच्या अगोदर त्यांनी मला सांगितलं होतं की 2 लाख चेक दिला होता आणि 1/15 3/15चा आपल्याला करायचा आहे. हम्म. 3/15 करता तर पार्टीला सांगितलं बाबा 27 तारखेला क्लोज होते प्लॅन. तर आपण 23 दिवसाच्या अगोदर जर हा क्लोज केला तर तुम्हाला 1% फायदा होईल. व्हेरी गुड. हाँ, आणि त्यासाठी पार्टीने स्पष्ट सांगितलं की 23 तारीख आहे तर ठीक आहे, मी माझा पर्सनल चेक देते, मग मॅच्युरिटी माझ्या अकाउंटला येऊ द्या. हाँ. आणि तशा प्रकारे तो झाला क्लोज प्लॅन. म्हणजे मग मॅच्युरिटी घेतली की नाही घेतली? मॅच्युरिटी 20 ऑगस्टला आहे. अच्छा, म्हणजे मॅच्युरिटीच्या आधीच चेक दिला. हा, ते काय 1% त्यांना जरा सांगायला लागलं की बाबा जर 20 ऑगस्टला तुम्हाला हा पर्सेंटेज नाही भेटणार शांतीचा. स्वतःकडचे पैसे टाकले म्हणजे त्यांनी. म्हणजे LIC जेव्हा हो ओके. त्याने ऑलरेडी 2चा चेक दिला, पण 1/15चा चेक अजून आपल्याला कमी पडत होता अच्छा. 20 ऑगस्टचा, तर त्याची तारीख नव्हती. ओके. बोलायचं तात्पर्य एवढंच आहे की कस्टमर रेडी आहे, आपल्याला फक्त कॉल उचलायचा आहे, कॉल घ्यायचा आहे. डेली जर पॉझिटिव्ह मध्ये सकाळी उठल्या 10-15 कॉल केले, तुमची दररोज रोशिंग राहिलं ना तर ऑटोमॅटिक कॉल आहेत. आणि करोना सगळे घेतात. करोना हा आपल्याकडे इंडियात हाच नाहीये, पण हे सगळं वातावरण तयार केलंय, सगळ्यांनी बाहेर पडा.
आता मी तर एप्रिल पासूनच बाहेर पडलोय, त्यानिमित्ताने मला तर माहिती आहे, सरांना तर माहिती आहे, मी सरांना सारखा फोन करत असतो, मी येणार, मी जाणार, हे सगळं चालू आहे. आज पण राजेंद्र तवटेचा एक आलाय, जीवन शांती सारखे फोन जर केले ना, कस्टमर कडे पैसे रेडी आहेत, कोणाची मॅच्युरिटी, कोणाचा एसबी चेक, आणि ब्रँचच्या खाली तर कंटिन्यू हे आहे, आपल्याकडे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आहे. आता ब्रँचच्या खाली माझ्याकडे 5 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आलेले आहेत, पण ते आज ना उद्या होती क्लिक, पण प्रॉस्पेक्ट बनलेत माझे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो हो. सेवा दिली की मेवा मिळतो. कंटिन्यू आपण ही मीटिंग घेतोय. हा, हॅलो, बरोबर, बोल बोल. हा, बोल. आपल्याला काही पण बाहेर निघायला पाहिजे. आणि आज चांगलं मोटिवेशन सरांनी दिलं की 1 to 1 एक 5 मिनिटाचं घेतलं, पण त्यात बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या की पहिलं काम कसं करायचं ते आठव, आता काम किती रेशिओ आहे तुझा पर्सेंटेज तो आठव, तो पर्सेंटेज चेंज करण्यासाठी काय करायला लागेल, किती कॉल करायला लागतील. बघा, फोन घरात बसून काय चाललं नाही, फोन उचला, फोन करा. काही जणांना जमत नाहीये, काय काय जण नाही जमत, तर आठवड्यातून एकदा तरी या, पण कॉल करा. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे ना, प्लॅन एवढे जबरदस्त नाही एलआयसीचे. ऑटोमॅटिक कॉल घेतल्यानंतर आपल्याला जवळजवळ मला 5 मध्ये एक रेशिओ सापडलाय, तर तो अजून चेंज आहे. या आठवड्यात, या महिन्यात 10चं पॉलिसीचं टार्गेट दिले, 2 झाल्यात, आता 6 दिवसात मला 8 करायचे आहेत. तर ह्या सगळ्या पॉलिसी अशा आहेत की तुम्हाला कधी कधी कॉल करता करता सिंगल प्लॅन ऑटोमॅटिक भेटेल. आणि एलआयसी सारखं रिटर्न कोणच देत नाही. आतापर्यंत मला वाटतं 35 ते 40 लाखापर्यंत मी वाटलेत, असं मी सांगतो सगळ्यांना. एलआयसी कडून एवढे वाटलेत असं सांगितलं तर काय काय जण चकित होतात. काय आहे, कोणाचं एसबी चेक आहे, कोणाची मॅच्युरिटी आहे, या कोणाला लोन काढून दिलंय, या आताच एक पार्टीचं सरेंडर केलंय 8.5 लाखाचं. दुसऱ्या ब्रांचला आहे, पण प्रत्येक ब्रांच आपलं काम करते, 8 ते 10 दिवसात पेमेंट देते. तुम्ही कसं पण पेमेंट ठेवलं ना तिथे ड्रॉप बॉक्सला, तरी पण पेमेंट सगळ्यांचं फास्ट होतंय. आपल्या ब्रांचला एकदम A1 सर्व्हिस आहे. तुम्ही विचार करा की कोणाचं, मला तर वाटत नाही काम करायला, पण तुम्हाला आलं पाहिजे, तुम्ही येऊन फॉलोअप करणं पण जरुरी आहे. काम रेडी आहे, काम पडलेलं आहे. प्रॉस्पेक्ट दिवसाला 15 पॉलिसी तरी करायला पाहिजे. बरोबर आहे. एक पॉलिसी आली तरी मोटिवेशन होते. आणि 5 मिनिटाचं जे मला ते 1 to 1 दिलं ना, त्याच्यामध्ये एक भरपूर काय भेटलं. आता त्याच्यावर वर्कआउट चालू आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो आपण तुझा सोमवारी आपण तुझा पण सन्मान करूया. आतापर्यंत 2 पॉलिसीज मला वाटतं तू दिल्यात या महिन्यामध्ये. सो इट्स अ व्हेरी गुड. हो हो. दत्ता जे काय बोलला त्याचं, उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग यही है कि ब्रांच में अभी आना शुरू करो. आप ब्रांच में आओगे तो ऑटोमेटिकली, अभी बहुत सारे एजेंट जो है, मैं भी देख रहा था कि चहल पहल लोगों की बढ़ गई है लोगों को. और जो नए ब्रांच मैनेजर है उनको भी आपको मिलना है. बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छी तरीके से बात करते हैं. तो जो मैं सबसे पहले वीडियो दिखाया, कोई लोग लेट आए थे, तो सबसे पहले जो वीडियो दिखाया मैंने, वो वीडियो यही था कि वहाँ पर जो उनको कहा गया, उनको बच्चों को असाइनमेंट दिया गया कि आप बड़े बन के क्या बनने वाले हो, तो उसने कहा कि मैं हैप्पी बनने वाला हूँ, सुखी बनने वाला हूँ. तो लोगों को हैप्पी बनाने का कार्यक्रम अगर आप करोगे तो खुद भी हैप्पी रहोगे. जीवन शांति का दौर जो अभी चला है, 28 तारीख के पहले जीवन शांति का दौर जो है, 28 तारीख के बाद उसका ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा. कल मैं एक मीटिंग जो अरेंज करूंगा उसमें रेपो रेट के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको रेपो रेट के बारे में समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और क्या होने वाला है. तो आप और अच्छी तरीके से समझा सकोगे लोगों को. तो ये जो शांति जो है, ये एक सेवा भाव का कार्यक्रम है. वो एक्चुअली वो अपना कार्यक्रम नहीं है. एक्चुअली अपने को जो कमीशन मिलता है उसके बेसिस के आधार पे नहीं है. लेकिन आप अगर शांति के लिए जाओगे
तो ऑटोमेटिकली आपका भी भला हो जाएगा। शायद उसमें आपको लाभ मिलेगा, शायद उसमें आपको उमंग भी मिल सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और आपका क्लाइंटल बेस बढ़ जाएगा, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ जाएगी। तो लोगों को हैप्पी कर रखने का कार्यक्रम करो तो ऑटोमेटिकली आप भी हैप्पी हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। एट द सेम टाइम मेडिक्लेम के बारे में जो मैंने बताया कि मेडिक्लेम आज की तारीख में लोगों की ज़रूरत है, तो इसीलिए मेडिक्लेम के लिए भी अगर आप जाओगे, जैसे कोरोना रक्षक और कोरोना कवच, ये दोनों स्टार हेल्थ के जो प्रोडक्ट है ये आए हुए हैं, आपके पोर्टल पे आपको दिखेगा। तो आप उसको भी अभी वो लेके भी एक विजिटिंग कार्ड है, वो लेके भी आप जाओगे तो भी आपका काम आसान होगा। बहुत जल्द LIC का भी आएगा, LIC का ऑलरेडी ऑन द वे है, तो वो भी आएगा, उसके साथ वो भी आप दे सकते हो। सभी इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने मतलब कंपल्जन किया है कि ये कोरोना रक्षक आपको निकालना है, तो सभी इंश्योरेंस कंपनी का है। जहाँ तक LIC का सवाल है, तो एक कैडबरी एक ब्रांड हो गई, कोलगेट एक ब्रांड हो गया, वैसे LIC इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ा ब्रांड है आज की तारीख में। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। LIC ऑफ इंडिया ये NOP में, नंबर ऑफ पॉलिसीज में नंबर 1 कंपनी है, नंबर ऑफ पॉलिसीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप गूगल में जाओगे और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड LIC ऑफ इंडिया नंबर ऑफ पॉलिसीज में नंबर 1 है। लेकिन जहां तक प्रीमियम का सवाल है, रेवेन्यू का सवाल है, तो नंबर 10 पे है। नंबर 1 पे आपको पिंगयान जो चाइना की कंपनी है वो दिखेगी, जो 1988 में आई हुई है, और LIC 1956 में आई हुई है। क्योंकि अपना जो रेवेन्यू है, अपना जो प्रीमियम है, हमारे जो एजेंट है वो एजेंट कम मांगते हैं। उनके ग्राहक जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले ग्राहक है, वो कम प्रीमियम देते हैं। कम प्रीमियम देना ये गुनाह नहीं है, लेकिन कम प्रीमियम मांगना ये ज़रूर गुनाह है। क्योंकि जो आदमी है उसका सफिशेंट इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी विद्या जो है, उसके हस्बैंड का देहांत हुआ अभी कोरोना में, 38 एज था उनका सिर्फ, और उनका इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का इंश्योरेंस है। तो ये हालत है, ये बदकिस्मती है कि कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस भी लिया होता ना, तो 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस जीवन अमर या अमूल्य जीवन हो अगर होता था उनके पास, तो आज एक साइजेबल अमाउंट उनकी फैमिली को मिलती थी, जो कि नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस कम है। और जब आदमी आता है, वहाँ से ऊपर से भेजा जाता है, भगवान हमें भेजता है, तो हमारे पीठ पीछे वो हमारी एक्सपायरी डेट उसने लिखी होती है, कब जाना है हमें वो दिखती नहीं, हमारे पीठ पीछे लिखी हुई है, हमें दिखती नहीं है वो। लेकिन हमारे तय है कि कब, आज नहीं तो कल जाना ही है, ये 100%। आज ही सुबह मुझे सपना आया था। इस सपने में मैं देख रहा था कि मैं मर चुका हूँ, और मैं मर चुका हूँ, और फिर भी मैं देख रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, मेरी आत्मा वहाँ पर रुकी हुई है, और मैं देख रहा हूँ सबको, वो क्या क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, ये मैं सुन रहा हूँ। तो ये पूरा सपना मेरा वैसे ही गया, और सुबह सुबह फिर मुझे 7 बजे मेरी आंखें जो है वो खुल गई, क्योंकि मेरा 8 बजे का सेशन था। तो ऐसा है ना कि अपनी जो एक्सपायरी है वो तो लिखी हुई है, वो तो हाँ आज नहीं तो कल हम लोग जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं ये किसी को पता नहीं है, कोई जल्दी जाता है, कोई थोड़ा लेट जाता है, लेकिन जाना वह है ये 100% है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भैया अभी भगवान हमें उठा ले, ऐसा भी होता है, क्योंकि उतना बूढ़ापन हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये भी बात है। लेकिन उसमें क्या है ना कि इंश्योरेंस ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी वैल्यू अभी ये आपको तय करनी है। तो इसीलिए मैं बाकी लोगों को भी गुजारिश करूँगा कि टर्म इंश्योरेंस, खुद का एक टर्म इंश्योरेंस, एक 25 लाख का एटलीस्ट एक टर्म इंश्योरेंस जीवन अमर, ये कम से कम आपका होना ही चाहिए आज की तारीख में। इट मस्ट फॉर यू। और वो टर्म इंश्योरेंस अगर आप ले लोगे तो कम से कम आपकी फैमिली को उतना तो एटलीस्ट, क्योंकि अभी ये जो डरावना माहौल सब चल रहा है, अभी कोरोना के साथ ही हमें जिंदा रहना है, जीना है, हमें बाहर भी घूमना है, काम तो करना ही है। तो कब क्या हो सकता है हमें पता नहीं है।
वो विषाणु किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा हमें मालूम नहीं है। तो भैया हमारा इंश्योरेंस होना आज की तारीख में बहुत आवश्यक है और हमारा मेडिक्लेम होना, ये दो चीज़ बहुत आवश्यक है। और भगवान की दया से दोनों की एजेंसी आपके पास है, तो जो भी कमीशन है वो आपको ही मिलने वाला है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और एक जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस ये ज़रूर लेना, और जितना हो सके जुलाई के अंदर आप उसको परचेस कर लेना, ताकि आपका इंश्योरेंस कवर भी चले। आपका क्या होता है ना कि आप दूसरों को सिखाने के लिए जाओगे और आपका खुद का नहीं इंश्योरेंस रहेगा तो वो बराबर नहीं है, राइट। तो दूसरों को हैप्पी तो रखना ही है, खुद को भी हैप्पी बनाना है। और खुद हैप्पी आप तब बनोगे जब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको आनंद आएगा, तो आप उसमें हैप्पी बनोगे। तो आपको अगर आनंद मिलना चाहिए तो आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ कीजिए। और अच्छा वो है कि दूसरे के आनंद में, दूसरे के सुख में हमारा सुख है, ये आप ध्यान में रखो। दूसरे के सुख में हमारा सुख है। शांति आप जब बेचोगे तो दूसरों का सुख देखते हो, मेडिक्लेम आप बेचते हो तो दूसरों का सुख देखते हो, ये ध्यान में रखो। आपका कमीशन तो मिलने वाला है, 2% मिलता है, 15% मिलता है, वो तो मिलने वाला है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए करके मत बेचो। ऐसे मेडिक्लेम तो बेचना है तो उसको पूरा समझदारी से बेचो। उसको जो भी कुछ उसके तकलीफ़ें हैं वो लिखो ताकि प्रॉब्लम ना आए। और नहीं भी लिखना है तो उसको बोलो कि मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे करके मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूँ तो ये प्रॉब्लम आएगा, ये है, नहीं लिखूँ तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। फिर जब आप अस्पताल में दाखिल होगे तब आपको ये करना है। विद्या ने बड़ी चतुराई से, विष्णु जब एडमिट हुआ था तो बड़ी चतुराई से उसको जो डायबिटीज़ था वो उसने वहाँ पर ये नहीं किया, लिखा नहीं। तो अस्पताल में जब डिस्चार्ज समरी आया तो उसमें वो डायबिटीज़ तभी डिटेक्ट हुआ, ऐसा आया है। तो अभी क्लेम के लिए वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये कोई होशियार होगा तो ये करता है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को होशियारी होती नहीं है। वो डॉक्टर के सामने बोल देते हैं मेरे को 10 साल से है, 15 साल से है, जो भी कुछ है वो बोल देते हैं, और फिर वो मेडिक्लेम का जो क्लेम है वो मिलना असंभव हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, देयर आर ओनली 2 minutes फॉर मी। मैं यही आपको कहने जा रहा हूँ कि जुलाई का एक सप्ताह बचा हुआ है, और एटलीस्ट एक वन पॉलिसी आप करके आप खुद को एक्टिवेट तो जरूर कीजिए। क्योंकि अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ और अभी जुलाई ख़त्म हो रहा है, 4 महीना ख़त्म हो रहा है। लॉकडाउन में कैसे जा रहे हैं महीने समझ में नहीं आ रहे। 2020 का ये 7वां महीना ख़त्म होगा। अभी सिर्फ 8, 9, 10, 11 और 12 5 महीना सिर्फ अपने पास बचे हुए हैं जुलाई मतलब 2020 ख़त्म होने के लिए। और आने वाले 5 महीने मतलब दिसंबर तक, ये 2020 ख़त्म होने तक कोरोना जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि जो लस आएगी वो शायद नवंबर के बाद ही आएगी, और दिवाली की छुट्टी के बाद ही स्कूल शुरू होंगे, ये इतना ध्यान में रखो। तो उसके इसलिए तैयार हो जाओ, काम हमें करना ही पड़ेगा, और काम करोगे उसमें ही काम, यही परिस्थिति में काम करना है, और काम करोगे तो ही आपके पास पैसा आएगा। और कैसे काम करना है, किस सुरक्षितता से काम करना है वो आप तय करो, लेकिन काम जरूर करना। और ये महीने में क्या कर सकते हो देखो, और इसके लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला है, कॉलिंग। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप 2 कॉल करो, 3 कॉल करो, 5 कॉल करो, 10 कॉल करो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आजू बाजू में जो नेबर है, जो कॉलोनी वाले हैं, उनको मिलना शुरू करो, बात करना शुरू करो, उनसे 1 to 1 बात करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू, ओके। और ये वीडियो जरूर देखना, ये यूट्यूब पे मैं जब भेजूंगा, मैं तो टेलीग्राम में भी भेजूंगा, अब स्टार इसके में भी भेजूंगा, अभी टेलीग्राम में जरूर देखना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।